morning, students. We are discussing the topic motion, right? Now, in last lecture, we have discussed some equations known as kinematical equations for object moving with uniform acceleration. Now, in today's lecture, we will discuss about motion of an object under gravity. अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। एट पर्टिकुलर हाइट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से वही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, दैट मूव्स डाउनवर्ड। ओके, नाउ वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सो इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट decreases and increases. While it moves upward, it decreases. While it moves downward, it increases. So there is change in velocity. There is change in velocity. Okay, and we know that whenever there is change in velocity, that is acceleration. Because acceleration की definition हमें पता है. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Whenever there is change in velocity of moving object, that acceleration is there. लेकिन अब इस एग्जांपल में व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इस एग्जांपल में वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। सो अर्थ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो जाती है। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा प्रोड्यूस। सो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब अर्थ के लिए या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर एवरेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? यहां पर लिखी देखिए, स्मॉल जी उसका सिंबल है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपको पता हो। नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर इजी कैलकुलेशंस इन न्यूमेरिकल्स। ओके, सो दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एनी ऑब्जेक्ट thrown upward or dropped from certain height, then there is change in velocity, and that uniform acceleration is produced due to Earth's gravity, that is known as acceleration due to gravity. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? Motion in one dimension. Okay, last lecture हमने motion in one dimension along straight line, horizontal direction में हमने discuss किया था, kinematical equations, etc. Okay. Now in vertical direction, यहाँ पर तीन possibilities है. Number one, if the object dropped vertically downward, suppose object है कुछ height पर और यहाँ से अगर उसको हम drop कर दें तो that moves downward, तो ये motion in one dimension होगी under gravity effect. Second, projected vertically downward, object drop नहीं करना है, उसको project करना है like this in downward direction. तो उस कंडीशन में इक्वेशंस क्या हो सकते हैं? और थर्ड कंडीशन, प्रोजेक्टेड अपवर्ड वर्टिकली, अगर ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्ट अप करना है ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, तब उसके लिए क्या इक्वेशंस हो सकते हैं काइनेमेटिक्स के? ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ कंसीडर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए पोजीशन पर, ठीक है, and ground level यहाँ पर B position. Suppose object is dropped from A position, then it moves vertically downward like this and reaches to the ground at B position. Okay, due to gravity. Now at A position इसकी initial velocity हम 0 consider करते हैं because initially object is at rest, right? Now when it moves downward, that velocity of the object goes on increasing. And when it is about to touch the ground at the B position, it has maximum velocity. So there is change in velocity, and this is because of acceleration due to gravity. तो यहाँ पर हम A के जगह पर acceleration के लिए G लेंगे यहाँ पर, मतलब acceleration due to gravity. Okay. Now particle या object का displacement A to B होता है, so that displacement is yet from A to B, इतना डिस्प्लेसमेंट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमें तैयार करने हैं यहाँ पर। तो पहले काइनेमेटिकल इक्वेशंस पता है हमें, देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, V is equal to U plus AT,
सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब सिंबल्स, हर एक सिंबल का मीनिंग आपको क्लियर है, ओके। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a acceleration, t time taken to move from a to b, where displacement s that is equal to s in this case, okay। now एक एक काइनेमेटिकल इक्वेशन इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर तैयार करते हैं। now पहले देखिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू, ओके, अब u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 प्लस a। अब a के जगह पर क्या लिखना है, कौन सा एक्सेलरेशन यहाँ पर, ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए g रखते हैं यहाँ पर g इनटू t। इसका मतलब v इज इक्वल टू gt, ये इक्वेशन तैयार हो जाता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू 9.8 और दैट इज टेकन एज 10, दैट इज इक्वल टू 10। अगर हम यहाँ पर g की वैल्यू 10 रखते हैं इनटू t, तो ये जनरल फार्मूला आ जाता है to calculate the velocity at the end of time t। For example, okay, एक ऑब्जेक्ट है a पोजीशन पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। now when it drop from a position and if it takes 4 seconds to reach the ground, तो when it is about to touch the ground 4 सेकंड के बाद उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, v is equal to 10 into t की वैल्यू कितनी, 4 सेकंड, 4 10 into 4 40, so this is 40 मीटर पर सेकंड, इतनी वैल्यू होगी। ऑब्जेक्ट पहले a पोजीशन पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से इसको ड्रॉप करते हैं। अब आफ्टर ड्रॉपिंग 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 10 into 1 10 मीटर पर सेकंड, ओके। आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 10 into 2 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड 30 मीटर पर सेकंड। अगर देखिए किसी हाइट से अगर हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं एंड व्हेन इट इज अबाउट टू टच ग्राउंड, यहां पर टाइम लगता है 8 सेकंड, तो मुझे बताइए वहां पर स्पीड कितनी होगी उसकी, यस 10 into 8 80 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड, राइट। तो ये फर्स्ट काइनेमेटिकल जनरल काइनेमेटिकल इक्वेशन, हम 10t ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर gt, g की वैल्यू 10 ही होती है। नाउ सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखिए, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, a to b डिस्प्लेसमेंट होता है, तो s के जगह पर क्या लिखना है, h, h इज इक्वल टू, ओके, u इनिशियल वेलोसिटी 0 into t प्लस हाफ, a के जगह पर क्या लिखना है, g t स्क्वायर, राइट। देयरफॉर h इज इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म बिकम 0, तो हाफ g t स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां पर तैयार होता है सेकंड। अब फिर से देखिए 1/2 into g की वैल्यू कितनी है, 10 into t स्क्वायर, यहां पर 2 5 10, सो दिस इज 5t स्क्वायर, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब सपोज यहां पर एक टावर है या फिर बिल्डिंग है, ओके, टावर के ऊपर से अगर एक ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉप कर लिया, अगर उसको लगता है 4 सेकंड टू रीच फ्रॉम A to B, अगर 4 सेकंड लगता है तो उस टावर की हाइट कितनी होगी, इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। देखिए टाइम कितना लगता है, 4 सेकंड, फिर 4 का स्क्वायर 16 into 5 80, सो टावर की हाइट कितनी होगी, 80 मीटर। अगर किसी टावर के ऊपर से अगर हमने ऑब्जेक्ट जस्ट ड्रॉप करना है, थ्रो नहीं करना, उसको ड्रॉप करना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ऐसे कंडीशन में ये फार्मूला हम शॉर्ट ट्रिक से ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर यहां से ग्राउंड तक 5 सेकंड लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में टावर की हाइट कितनी होगी, देखिए 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर 25 into 5 125, सो 125 मीटर, उतनी इसकी हाइट होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अब थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल u इनिशियल वेलोसिटी 0, सो 0 प्लस 2, अब a के जगह पर लिखना है g, ओके, और s के जगह पर लिखना है h। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h,
Okay, therefore V is equal to root 2GH. Now, this is root 2 into 10 into H, so root 20H. ये शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होता है. देखिए, V is equal to root 2GH. G की वैल्यू तो फिक्स है 10 या 9.8. ओके, सो रूट 20H. अगर हमें हाइट पता है हमें 100 मीटर हाइट है, ठीक है, तो अगर उसके टॉप पोजीशन से ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से हम वो निकाल सकते हैं. ठीक है, वैसे और एक ये फॉर्मूला देखिए, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. ओके, तो यहां से t स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय g और t इज इक्वल टू रूट 2h डिवाइडेड बाय g. एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में मिलता है यहाँ पर. अगर हाइट पता है टावर या बिल्डिंग की, ये यहाँ पर, ओके, g की वैल्यू तो फिक्स है 10, तो टाइम कितना लगेगा किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो बॉटम तक आने के लिए टाइम कितना लगता है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. तो ये पूरे इक्वेशंस किस कंडीशन के लिए होंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, नो सेकंड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. अब इन दोनों में ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, डिफरेंस क्या है देखिए. यहां पर हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है. किसी अगर इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं ऐसा, तो दैट इज ड्रॉपिंग कंडीशन. ओके, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे प्रोजेक्ट डाउन करते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, सो दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. मतलब इस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं, इट हैज सर्टेन वैल्यू, सो u इज नॉट इक्वल टू 0. अब वही फॉर्मूलेज यहां पर कैसे होंगे, ठीक है. तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू u प्लस a के जगह पर क्या लिखना है हमें, g, so gt. so this will be the first kinematic equation. मतलब फॉर्मूला यही है, v इज इक्वल टू gt, लेकिन उसमें क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऐड करनी है, बस उतना ही चेंज है यहाँ पर. देन सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, s के जगह पर लिखना है h. So h is equal to ut plus half at square है, तो a के जगह पर gt square लिखना है. Okay. Now third kinematical equation, v square is equal to u square plus 2gh. So these are the kinematical equations in case of object projected downward with certain initial velocity. Okay. Now third condition, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. अब इसको यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऐसे प्रोजेक्ट करना है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं, बिकॉज विद दिस इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी. लेकिन ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ये कंडीशन है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो सकती है. मतलब इस एग्जांपल में व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड उसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है एंड मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ठीक है, इस कंडीशन में अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या हो सकते हैं ये डिस्कस करते हैं. अब देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि व्हेन इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, तो स्पीड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है. इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस. ओके, तो यहाँ पर ये रिटार्डेशन हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो इसलिए हम यहाँ पर a की वैल्यू माइनस g रखेंगे. अब फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस a के जगह पर लिखना है माइनस g इंटू t, लेकिन v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0. ओके, इज इक्वल u माइनस gt, therefore u is equal to gt. तो ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें मिलता है. अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड अपवर्ड करते हैं और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको 4 सेकंड लगते हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, 10 into 4 that is 40.
राइट, ये एक फॉर्मूला है यहाँ पर। और सपोज यहाँ पर टाइम दिया है, सपोज यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, अगर ये निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, v = u - gt। लेकिन उस कंडीशन में हमें t और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ओके पता होना जरूरी है। तो दैट वैल्यूज आर गिवन इन द न्यूमेरिकल्स। नाउ सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s = ut + ½ at²। अब s के जगह पर क्या लिखना है हमें, h, तो h = ut प्लस हाफ, g के a के जगह पर -g t²। सो h = ut - ½ gt²। ये फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, v² = u² प्लस 2, a के जगह पर लिखना है -g * h। ओके, सो v² = u² - 2gh। ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर तैयार होगा, राइट बच्चों।